Very good morning, dear student. So, in the last part of the videos, we have seen, or we can say, we have studied the unification of Italy, Germany, and Britain. So, students, I am making video like this because my marker is not working properly. Okay, it is damaged. So, in this video, please cooperate regarding this type of video. Marker is not working, that's why I am making like this. So let's start. Two topics are there: visualizing the nation and the nationalism and imperialism. So these two topics we will cover, and with this our lesson will be finished. So as we have seen that feeling of nationalism was emerging among the nations, and they were doing a lot for the we can say unification and all. So at different, so the different nations were personifying their nation, and they were using a female figure for representing the nation and their we can say bravery of the nations, or we can say features of the nation. They were using female figures for representing the quality or characteristics of their nation. Okay, so this is allegory. Allegory is the female figure which is used by the nations for describing the qualities of their nation or the characteristics of their nation, for forming they were also using allegories for making collective identity among the nations. So let's start. So different countries were using or uh, using the female figures for representing their nation, and they were choosing the females to to personify the nation. Okay, if you talk about in real sense, there was not any kind of women. Like if you talk about Bharat Mata, we are in our country Bharat Mata is used as a female figure for the nation, representing the power and strength of the country. Okay, but in if we talk about real sense, there is not any kind of lady like Bharat Mata in the country. We are just personifying the nation with the help of female figure. Okay, so in other European countries also, allegories, or we can say female figures, were used for describing the nation. Like if we talk about French Revolution, female allegory of France portrayed the idea of liberty, justice and the republic. अब जैसे अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें, तो वहाँ पर जो फीमेल फिगर यूज़ किया गया, ठीक है, तो वो क्या सिंबलाइज करती थी, वो क्या शो करती थी, कैसे आइडियाज़, जैसे लिबर्टी, जस्टिस, है ना, और अगर बात की जाए तो रिपब्लिक, इन आइडियाज़ को वो पोर्ट्रे करती थी, शो करती थी फीमेल फिगर फ्रांस का। और इनके अलावा द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी किस तरीके से शो किए जाते थे, लिबर्टी के एट्रीब्यूट्स या फीचर्स, बाय रेड कैप और द ब्रोकन चेन्स, वाइल जस्टिस इज जनरली अ ब्लाइंड फोल्डेड विमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स। इस तरीके से ही जस्टिस को कैसे शो करते थे, एक विमेन है, ब्लाइंड फोल्डेड है, मतलब उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और वो वेइंग स्केल हाथ में लेकर खड़ी है। इस तरीके से वो जस्टिस रिप्रेजेंट करते थे। ओके, तो सच काइंड ऑफ आइडियाज वर represented with the help of the allegory of one particular country. Again I am saying allegory means the female figure used by the nation for describing itself. Okay, or we can say the nation is personified with the help of female figure, or we can say this is done in order to describe the country or the nation, key features of the nation, and to spread or form collective identity. Okay, so another similar female allegories were invented by artists in the 19th century to represent the nation. बहुत अलग अलग जगह पे यूज़ किया गया। जैसे कि अगर बात करें फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में, हमने बात करी फीमेल एलिगरीज को क्या शो करती थी। और इसके अलावा जो फ्रांस की एलिगरी थी, उसका जो नेम था दैट वाज क्रिश्चियन मेरेना।
ओके, ये एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम था, कई बार पूछ लिया जाता है हु वॉज द एलिगरी और व्हाट वॉज द नेम ऑफ एलिगरी ऑफ फ्रांस, तो आपको पता होना चाहिए क्रिस्टियन मेरेने। ओके, अब ये जो थी, अब इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, दोज वर लिबर्टी एंड रिपब्लिक, जो हमने अभी डिस्कस किया, रेड कैप रहता था उनका, और ट्राई कलर एंड कॉकेट। कॉकेट बेटा बेटा होता है कि एक पर्टिकुलर बैच की तरह होता है, जैसे एक सबसे अच्छा एग्जांपल दूँ, जो एक पर्टिकुलर रैंक वगैरह को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अपने स्कूल में एनुअल डे होता है, सभी टीचर्स को एक बैच दिया जाता है पहनने के लिए, तो सच काइंड ऑफ बैच वॉज worn बाय द मेरीना, विच वॉज द एलिगरी ऑफ फ्रांस। एंड ये जो मेरीना है, इनके स्टैचूज पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक स्क्वायर, जो चौराहे वगैरह होते थे, तो वहाँ पर इनको इरेक्ट कर दिया गया, लगा दिया गया, क्या करने के लिए? टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी एंड परसुएड देम टू आइडेंटिफाई विथ इट। मेरीना इमेजेस और मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स। देखो कितना ज़्यादा एक तरह से पॉपुलराइज किया गया। मैंने शुरू में कहा था आपको, नेशन को एक डिस्क्राइब करता है, क्वालिटीज़ ऑफ नेशन को, की फीचर्स ऑफ नेशन को। अदर देन दिस इट वाज आल्सो यूज्ड फॉर रिमाइंडिंग पीपल अबाउट द कलेक्टिविटी और यूनिटी। तो इनको क्या कर दिया गया, फ्रांस में पब्लिक स्क्वायर में, चौराहे वगैरह जो होते थे, वहाँ पर इनको, इनकी इमेज को, स्टैचू को इरेक्ट कर दिया गया, ताकि ये जो सभी लोगों को दिखता रहे, क्या, सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी, और लोग क्या करें, अपने आप को इससे जाने, एक तरह से अपने आप को इससे कनेक्ट करें। यहाँ तक कि मेरेने की इमेजेस को यूज़ किया गया कॉइन्स पर और स्टैम्प्स पर भी। और अगर ये तो हमने बात की एलिगरी ऑफ फ्रांस के बारे में, अब हम बात कर लेते हैं एलिगरी ऑफ जर्मन नेशन। तो जर्मनी में भी क्या कर, जर्मनी की जो एलिगरी थी उनका नाम था जर्मेनिया। ओके, जर्मेनिया बिकेम द एलिगरी ऑफ जर्मन नेशंस। और इनका क्या तरीका था, जर्मेनिया वॉर अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ये ओक लीव्स का क्राउन, ये ताज पहनती थी। एंड दिस जर्मन ओक स्टैंड फॉर द हीरोइज्म, मतलब ब्रेवरी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप इमेज में भी देख सकते हैं अपनी बुक में, ये क्लियरली स्टेटेड है, देखिए इन्होंने ओक लीव्स का क्राउन पहना हुआ है, हाथ में स्वॉर्ड है। सो दिस इज द पेंटिंग ऑफ जर्मेनिया। अदर देन दिस, what is there? She is having flag, tricolor flag with her. Okay, so this is the image. So what you have to remember in this, the two allegories, name of allegory of France was Christian Mariana, and the name of allegory of Germany was Germania. What they used to represent or describe, this also you have to remember. अगर हम बात करें मेरियाना का, तो वो बहुत सारे आइडियाज़ को शो करती थी, लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक, रेड कैप रहता था उनके पास, ट्राई कलर और कॉकेट रहता था, पब्लिक स्क्वायर्स में उनको इरेक्ट किया गया था। क्यों? ताकि लोगों में यूनिटी का जो सिंबल है वो डेवलप हो जाए, नेशनल सिंबल। अदर देन दिस, उनके इमेजेस को कॉइन्स और स्टैम्प्स पर यूज़ किया गया। अगर हम बात करें जर्मेनिया का, सो शी यूज टू वेयर ओक लीव्स विच वर द सिंबल ऑफ bravery, or we can say heroism. So allegory was a female female figure which was used by nations to show abstract idea can be in the form of various features like liberty, characteristics, or showing any kind of feelings. Okay, these things, and in order to symbolize the symbol of national unity, these were used. If we talk about the another part, like, this is important, that these were the some attributes, like broken chains were symbol of being free, and breastplate with eagle was a symbol of German empire's strength. Then oak leaves, crown of oak leaves was a symbol of heroism. Sword, जो तलवार, that was the symbol of readiness to fight. ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, स्वॉर्ड जो तलवार थी उसके साथ में जो उसके पूरे आसपास में जो ऑलिव ब्रांच है, दैट वाज फॉर सिंबल ऑफ विलिंगनेस टू मेक पीस सॉरी। एंड ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर फ्लैग जो है, दैट वाज द सिंबल ऑफ that was the flag of liberal nationalist in 1848 but banned by the Duke
ऑफ जर्मन स्टेट ड्यूट मतलब जो राजकुमार थे जर्मन स्टेट्स के। फिर है रेज ऑफ द राइजिंग सन, दैट वॉज द सिंबल ऑफ बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा। सो एनी वन कैन बी, एनी टू कैन बी आस्क इन एग्जाम that broken chain symbolizes what, such kind of questions can be framed from this. And other than this beta, you have to see all the boxes given in the book, because questions can come also from those. And what is the explanation given by the images? Like if you talk about this figure 18, the fallen Germania, Julius हब्सबर्ग, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये होपलेसनेस रिप्रेजेंट कर रहा है। जब उनको पता चलता है कि यूनिफिकेशन प्रॉपरली नहीं हो सकता, तो ये क्या होपलेसनेस या फिर सैडनेस वाली फीलिंग ये इमेज शो कर रही है। अदर देन दिस जर्मानिया गाइडिंग द राइन। ओके, तो आपने पढ़ा था, देखो ट्रीटी ऑफ जब वर्सलेस पढ़ा था आपने, तो उसमें पढ़ा था राइनलैंड क्या था, बहुत रिच था रिसोर्सेज में, ठीक है, लेकिन उसको कैप्चर कर लिया जाता है। तो वो इमेज यहाँ पर ये जर्मेनिया शो कर रही है, गार्ड कर रही है किसको, राइनलैंड को। वो क्या है, एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स लैंड है जर्मनी का। तो जर्मन स्वॉर्ड प्रोटेक्ट्स द जर्मन राइनलैंड, दिस इज देयर। So this image is showing this. Now we will talk about the nationalism and the imperialism. First of all, you should be very clear with the meaning of these two terms. Like first one is nationalism. Nationalism, now you all know the feeling of love and proud towards one's nation, feeling of sacrifice towards one's nation. अगर हम imperialism की बात की जाए, तो इसको आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज अगर हम इंडिया हैं, इंडिया के लोग हम ये बोलें कि वी लव आवर नेशन, वी आर वेरी प्राउड फॉर आवर नेशन इज़ ग्रोइंग वेल, ओके, इस तरह की अगर बात करें तो वो क्या होगा, वो ये शो कर रहा है कि हम क्या है, पेट्रियोटिज्म वाली फीलिंग है हमारे कंट्री के लिए, या फिर नेशनलिज्म वाली फीलिंग हमारे कंट्री के लिए वी पीपल आर हैविंग। बट अगर हम बात करें कि इंडिया के कुछ इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज कुछ पुअर हैं इंडिया से, जैसे बांग्लादेश की बात हम कर लेते हैं, है ना, भूटान की बात कर लेते हैं, नेपाल की बात कर लेते हैं। तो ये जो कंट्रीज़ हैं, हम कहें कि इंडिया जो है वो एक बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत पावरफुल कंट्री है, और तो इतनी बात तो क्या किस में काउंट होगी, नेशनलिज्म में काउंट होगी। लेकिन अगर हम कहें कि इंडिया ही सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री है, ठीक है, और इंडिया को क्या कर लेना चाहिए, जो अपने सबॉर्डिनेट स्मॉल कंट्रीज़ हैं, एडजेसेंट कंट्रीज़ हैं, लेस पावरफुल कंट्रीज़ हैं, उनको डोमिनेट कर लेना चाहिए, उनको कैप्चर कर लेना चाहिए, अपनी टेरिटरी बढ़ा लेनी चाहिए, ठीक है। बाकी कंट्रीज़ कुछ कर ही नहीं सकते, सिर्फ इंडिया इज़ द होल सोल, ठीक है। इस तरह की अगर बातें करें तो दैट विल बी काउंटेड एज द फीलिंग ऑफ इम्पेरियलिज्म। मतलब सब अगर ये कहें हमारा देश अच्छा है, देन इट इज़ गुड, लेकिन उनमें से अगर कुछ लोग ऐसे कहें कि आवर कंट्री शुड बी द ओनली हीरो, हमारा ही कंट्री को राज करना चाहिए क्योंकि हमारा कंट्री पावरफुल है, ठीक है, इस तरह की फीलिंग क्या हो जाएगी, इम्पीरियलिज्म हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूँ, जब हमारा कंट्री ने फ्रीडम अचीव नहीं किया था, तो इंडिया वॉज अ इम्पीरियलिस्टिक, इंडिया जो था एक इम्पीरियलिस्टिक टेरिटरी था, किसका, ब्रिटिशर्स का। और ब्रिटिशर्स की आइडियोलॉजी क्या होगी, इम्पीरियलिज्म वाली आइडियोलॉजी की, तभी वो इंडिया में आए और इंडिया में ट्रेड से लेकर रूल करने की बात सोची और किया भी। ओके, समझ में आ गई आपको बात। तो अब आगे देखते हैं। तो इसमें जैसे कि देखो आपने पढ़ा, बहुत जगह नेशनलिज्म वाली फीलिंग इमर्ज हो रही थी धीरे धीरे, ठीक है। तो कुछ जर्मन पावर्स में क्या होने लगा था, धीरे धीरे ये नेशनलिज्म फीलिंग जो थी नीचे जा रही थी, डाउन जा रही थी। और कौन सी फीलिंग उनमें इमर्ज हो रही थी, उनमें इमर्ज हो रही थी कौन सी, इम्पीरियलिज्म वाली फीलिंग। और वी कैन से वो अपने इम्पीरियलिस्टिक एम्स को फुलफिल करने के बारे में सोच रहे थे। तो हम इसका एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें से क्वेश्चंस भी फॉर्म्ड होते हैं काफ़ी बार। तो जो आपका टर्की था, सॉरी, तो उसमें क्या था कि ऑटोमन एम्पायर का रूल था, और बल्कन्स का एक रीजन था। बल्कन्स का रीजन जो था, बिल्कुल बॉर्डर आप मानो यूरोप का, और जो मेडिटेरियन सी है उस तरफ, तो वहाँ पर बल्कन रीजन
किस रीजन को बोला गया है पहले आपको ये समझना पड़ेगा। जो आज के टाइम में रोमानिया है, बल्गेरिया है, अल्बानिया है, ग्रीस है, मैसेडोनिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया है, हर्जेवो हर्जेगोविनिया है, स्लोविया है, साइबेरिया है एंड मॉन्टेनेग्रो है। तो ये पूरा का पूरा रीजन जो था किसी टाइम में बल्कन्स कहलाता था। और इसमें जो लोग इनहेबिटेट कर रहे थे, जो लोग रह रहे थे इन रीजन्स में, उनको क्या क्या कहा जाता था? स्लव्स कहा जाता था। ओके, एंड लार्ज पार्ट ऑफ द बल्कन रीजन्स वर अंडर द बाल्कन्स रीजन्स वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। आपको इतनी सी बात समझनी है अभी कि ये जो नेशनलिस्ट वाली फीलिंग थी, इसकी वजह से बहुत टेंशन क्रिएट हो गया है यूरोप में 1871 में और बल्कन्स वाले रीजन में। तो इसका हम देख रहे हैं डिटेल में। बल्कन्स रीजन किसको बोल रहे हैं? जो प्रेजेंट डे में रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना एंड स्लोवेनिया एंड सर्बिया एंड मॉन्टेनेग्रो है। तो इस पूरे रीजन को हम बल्कन्स रीजन बोलते हैं। इसमें जो लोग रह रहे थे उनको स्लव बोला जाता है। और ये पूरा एम्पायर बल्कन्स का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट था वो किसके अंडर में था? ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। अब आगे देखिए, तो धीरे धीरे क्या होने लगा, जो नेशनलिस्ट थी बल्कन्स में, उसकी वजह से वो एम्पायर था ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट होने लगा। ठीक है, जब नेशनलिस्ट वाली फीलिंग्स हर जगह डेवलप हो रही थी तो बल्कन्स में भी नेशनलिस्ट वाली फीलिंग्स डेवलप हो गई थी। और ये लोग जो थे ये अलग अलग एथनिक ग्रुप्स में थे। मतलब जैसे मान लो बल्गेरिया के लोग हैं तो उनका ग्रुप अलग है। ठीक है, उसके बाद साइबेरिया के कुछ लोग रीजन में है तो उनकी अपना एथनिक कल्चर है, उनकी अपनी लैंग्वेज वगैरह है, उनका अलग लिविंग वे है। तो इस तरीके से ये सारे लोग डिवाइडेड थे। तो जब नेशनलिस्ट फीलिंग्स डेवलप हुई तो पूरा जो ऑटोमन एम्पायर है वो डिसइंटीग्रेट हो गया। और ऑटोमन एम्पायर ने बहुत कोशिश की स्ट्रेंथन होने की, मॉडर्नाइजेशन करने की, इंटरनल रिफॉर्म्स वगैरह, चेंजेस वगैरह लाने की, बट वो कोई ज़्यादा बड़ा सक्सेस अचीव नहीं कर पाए। एक तरह से मैं कहूँ कि वापस से ऑटोमन एम्पायर इस पूरे रीजन को प्रॉपरली कैप्चर नहीं कर पाया। और एक के बाद एक ये जो रीजन्स थे, ये जो स्मॉल स्मॉल कंट्रीज़ थे बल्कन एम्पायर में, या फिर मैं बात करूँ बल्कन रीजन में जो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में थी, धीरे धीरे अपने आप को इंडिपेंडेंट करते गए। किससे? बल्कन रीजन से, ऑटोमन एम्पायर से। और अब ये जब लोग इंडिपेंडेंस गेन करने लगे तो ये अपने पॉलिटिकल राइट्स की बात करने भी लगे। ठीक है, इंडिपेंडेंस की बात करने लगे और ये कहने लगे हम किसी फॉरेन पावर्स के अंडर में रूल अब नहीं होने देंगे अपने आप को, और अपना खुद का हम कंट्री डेवलप करेंगे, अपनी खुद की टेरिटरी ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी। ठीक है, अब यही एक रीज़न होता है। अब क्या होने लगता है, जो ये सारे कंट्रीज़ हैं ये आपस में क्या करने लग जाते हैं, एक दूसरे से ही झगड़ने लग जाते हैं। क्योंकि इनमें से अगर मान लो एक है बड़ा कंट्री या पावरफुल कंट्री इन 8-10 में से, तो वो कहने लगा कि मैं क्या करूँगा, ज़्यादा पॉलिटिकल डोमिनेशन करूँगा। और वो कैसे करूँगा, इन अपनी टेरिटरीज बढ़ाकर। तो इनमें से जो ये कंट्रीज़ थे ये एक दूसरे से ही लड़ने लगे फॉर व्हाट, फॉर इंक्रीजिंग देयर टेरिटरी, बिकॉज दे वर थिंकिंग दैट अगर टेरिटरी बढ़ जाएगी तो मैं इन बाकी जो छोटे कंट्रीज़ हैं इन पर पॉलिटिकल तरीके से डोमिनेट करके रूल कर लूँगा, अपनी आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस को और ज़्यादा पावरफुल बना लूँगा। तो इस तरीके से बल्कन एरिया क्या बन गया, एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। ओके, all the small countries which were in Balkan area, they were wanting to extend their territories and to dominate over the other small countries or areas. And they all were they were all were feeling jealousy for each other, and each hoped to gain more territory at the expense of other। ये बता दिया आपको। और ज़्यादा सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड तब हो गई जब बिग जो पावरफुल और कंट्रीज थे वो भी आ गए। बिग पावरफुल राइवलरीज जब आ गई, बड़े दुश्मन जब आ गए। बड़े दुश्मन का मतलब है रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर्स या कंट्रीज जब आ गए। क्योंकि इन्होंने सोचा कि भाई ये छोटे छोटे जो बच्चे लड़ाई कर रहे हैं इनको हटाकर अगर हम क्यों ना क्या कर लें इस पूरे रीजन को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सफुल था ये एरिया, इस पूरे एरिया को हम ही क्यों ना कैप्चर कर लें। तो जब ये इंटेंस राइवलरी वाला सिस्टम चल रहा था तो यूरोपियन पावर्स ट्रेड्स और कॉलोनीज भी नेवल और मिलिट्री के थ्रू यहाँ पर आ जाते हैं और
इनकी बल्कन्स की प्रॉब्लम ज़्यादा तब बढ़ जाती है जब रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी भी सोचते हैं कि हम यहाँ पर क्या करें, पावरफुल होकर एरिया को कैप्चर कर कर यहाँ पर डोमिनेट करें। इन्होंने भी सोच लिया कि हम अपना एम्पायर एक्सटेंड करेंगे बल्कन रीजन्स को कैप्चर करके, और धीरे धीरे बहुत सारे वॉर्स होते हैं इस रीजन में, और फाइनली जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ जाता है। फिर अब आगे हम देखेंगे कि नेशनलिज्म था, लेकिन साथ साथ में क्या भी अब स्टार्ट हो चुका था, इम्पीरियलिज्म स्टार्ट हो चुका था। इम्पीरियलिज्म मैं आपको बता चुकी हूँ क्या है। जब हम ये बोलें कि वी विल बी द ओनली हीरो, अदर्स विल बी अंडर अस, ये वाली फीलिंग। ओके, सो अब आगे क्या होता है, मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैज़ बिन कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर्स इन द 19th सेंचुरी बिगिन टू अपोज इम्पीरियल डोमिनेशन। अब कुछ क्या था, यूरोपियन पावर्स ने, जैसे यहाँ पर जो यूरोपियन पावर्स थे वो मान लो कुछ कंट्रीज़ पे कैप्चर करने लगे, तो एंटी इम्पेरियलिस्ट जो मूवमेंट्स थे वो होने लगे बहुत ज़्यादा, और अपोज होने लगे, इम्पीरियल डोमिनेशन वाले सिस्टम को अपोज किया जाने लगा। और धीरे धीरे क्या होने लगा, अब बहुत सारे कंट्रीज़ में मांग होने लगी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद किसकी, इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट फॉर्मेशन की, और लोग एक तरह से इंस्पायर हुए कलेक्टिव नेशन यूनिटी के साथ में, और उन्होंने कन्फ्रंट किया अगेंस्ट हुए वो किसके, इम्पीरियलिज्म के। आगे इस लास्ट पार्ट हमारा ये दिया हुआ है इसमें कि यूरोपियन आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म वर नाउ replicated, and for people everywhere developed their own specific variety of nationalism। तो अलग अलग कंट्रीज अब क्या करने लगे, वो एक्सेप्ट करने लगे कि नेशन स्टेट यानी इंडिपेंडेंसी का आइडिया उनका खुद का है, एंड दे शुड बी गिवन इंडिपेंडेंस, एंड इट वाज कंसिडर्ड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल फॉर एवरी कंट्री।